Absolutely. Great. Chalo. So, yeah, I was asking about your quarantine period. How's it going? So my quarantine got over 4th June ko. I came home on 29th May, Okay. and that was after 7 days of hotel quarantine. So abhi to it's officially over, and I tested negative thankfully. So sab theek hai. That's really nice. That's really nice. So you were working abroad or you were studying? Actually, I was there to take the exam. I was in UK to take the exam for their medical license, so I can practice as a doctor there. And Okay. that doesn't count as studying or working. Neither. Yeah, Yeah. it's okay. Great. Yeah. So you started working over there? No, I haven't yet. I'm waiting to go back later this year, probably. Okay. So you have plans to work over there, not in India? Yeah, no. I'm definitely going there. I passed the exam and I have the medical license there now. I'm just waiting for a job now. नहीं, बट हमें काफी जरूरत है अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की यहाँ पे, बिकॉज अभी कैसी सिचुएशन चल रही है. यू ऑल्सो नो इट वेरी वेल. I know, I know. And इस situation में तो I definitely like to help out. But Yes, I yes, don't yes. know if even the hospitals are, taking up new doctors. But मैं definitely, in fact, I would really like to work in an NGO इधर जयपुर में especially. I would really like to give my services. But मुझे अभी तक कोई अच्छी opening भी नहीं मिली है. अच्छा अच्छा अच्छा. नहीं, but earlier you were working somewhere, right? I guess Santokpa Dullabji, or you were doing Yeah, internship? I was. No, I was working in Durlabji in the cardiology department, yes. Oh, cardiology. Really nice. Very nice. Lovely. So tell me this, how you got into these things, poetry and all, writing? I started writing when I was in sixth standard. It was Oh, I actually didn't a knew. very stupid. It was a very stupid thing actually. Why I नहीं 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 नहीं, started बिल्कुल भी नहीं. writing. हॉबी होना बहुत अच्छी No, बात होती है. नहीं हॉबी नहीं होना मैंने बहुत अच्छी शुरू बात है. क्यों किया था that was a stupid thing, but well I started liking it, and it's actually a good let out also. You kind of Yes, it is. channelize your negative emotions into something positive, creative, artsy. So I really like it. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. सबकी कोई ना कोई हॉबीज होनी चाहिए, क्योंकि उनको बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस इतना है मार्केट में कि उसको चैनलाइज सही से Yeah, करने के लिए, जैसा तुमने बताया, कि अच्छी बात है. definitely. You also sing, and so या well. समटाइम्स आई डू. अभी लॉकडाउन में टाइम है तो थोड़ा बहुत I know, गुनगुनाते right? रहते हैं, गाते रहते हैं. हाँ. Hmm. अभी वर्क प्रेशर इतना है नहीं, तो Hmm. बिल्कुल नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और क्या. अच्छा. That actually helps keep the stress out and monotony नहीं बढ़ती है इस चीज से. Which यस is यस, very important, एब्सोल्युटली. especially इस वक्त, because you cannot go out. बिल्कुल. नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग ये लॉकडाउन को लेके काफी नेगेटिव हो जाते हैं कि और फिर वो मेंटल हेल्थ उनकी अफेक्ट होती है, फिर वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं. तो एज यू आर अ डॉक्टर, Definitely. यू In मस्ट बी अवेयर. यस. fact, yeah, I mean, इस वक्त actually बाकी स्पेशलिस्ट ओपीडीज तो इसलिए नहीं पेशेंट्स आते वहां पर बिकॉज ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू एक्सपोज देमसेल्व्स टू कोविड, बट साइकाइट्री के ओपीडीज में काफी बूम है आजकल जस्ट बिकॉज पीपल हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ आई कैन इश्यूज, एंड अंडरस्टैंड. बिल्कुल. I won't blame them for it because this is something none of us was prepared for. So यस, एब्सोल्युटली. I can. प्रिपेयर तो कोई भी नहीं था, बट सबको साथ में डील करना है. बट क्योंकि लोगों के पास लोग हैं नहीं एक्चुअली बातें करने के लिए, उनके साथ डिस्कस करने के लिए, Exactly. उनकी बातें शेयर करने के लिए. दैट्स द But इशू. I hope all of us are getting closer to our families इस कारण. हाँ, ये बहुत अच्छी बात हो गई. ये बहुत अच्छी बात हो Yeah. गई कि हाँ, लॉकडाउन के कारण कि सब अपने फैमिलीज के But साथ में हैं. यस. yeah, and काफी सारे लोगों को एक्चुअली घर से दूर लॉकडाउन होना पड़ा, so that was I हाँ, think थोड़ा दैट्स ज्यादा वो समथिंग. प्रॉब्लमेटिक हाँ था हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. because मैं तो खुद भी I was हाँ, या यू वर yeah. स्टक, यू वर स्टक समवेयर. Yeah, so I was stuck, and it was another country. I did not have a lot of people around, and एक रूम था. Obviously, India जितनी स्पेस नहीं थी मेरे पास वहां पर, so it was really small room, and my window used to open just an inch. So मेरे my पास God. में ऐसे बाहर भी ऐसे कुछ हवा नहीं आती थी. So I could have gone out, but obviously I didn't want to. But yeah, बिल्कुल हम इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ, it वो was a little difficult. डिफिकल्ट सिचुएशन. यस यस, बिल्कुल. क्योंकि इंडिया में तो कोविड बाद में आया,
तो इंडिया के पास टाइम था मैनेज करने के लिए और उस पर रिएक्ट करने के लिए। बाहर वाली कंट्रीज में तो बहुत पहले आ गया था। एग्जैक्टली, एंड उनके यूरोप पास में तो टाइम नहीं पता ही है क्या क्या हाल हो रहा है। सो यस यस। सो यू वर इन यूरोप? या आई वाज इन यूके, मैनचेस्टर। सो आई ओके वाज यूके। हाँ देयर। यूके में तो काफी, यूके में काफी फैल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब जानते हैं, न्यूज में देखते रहते हैं। न्यूज में और कुछ तो आता नहीं है, अच्छी बात तो आती नहीं है। ओनली नेगेटिव न्यूज इज देयर एंड इट्स अबाउट कोरोना। Yeah, and so it's very difficult to maintain balance कि आप बिल्कुल ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल इग्नोर कर दो न्यूज को। सो यू ऑब्वियसली नीड टू बी अवेयर एंड यू वन हैज टू बी अवेयर। एंड देन यू डोंट नो हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस कि मैं कब ये बंद करूं, बिकॉज इवन अदर देन दैट ऑल्सो मैं देखती हूँ कि स्पेशली मेरे घर में द एल्डर्स दे कैन नॉट स्टॉप वाचिंग क्राइम पेट्रोल एंड स्टफ। So Same here, it's same in like, my family as well. They yeah. are very keen on watching Crime Patrol and other stuff like Yeah, that. so actually it does affect our mentality a lot. बिल्कुल So, बिल्कुल, जो हम देखते हैं, जो हम इतना सुनते हैं, तो उनसे मेंटालिटी तो अफेक्ट होती होती है। बिल्कुल सही बात है। So बट I आजकल would तो ये, suggest कि इतना ना हाँ, देखा जाए नेगेटिव मीडिया स्पेशली। नहीं बट आजकल काफी अच्छा कंटेंट भी आ चुका है मार्केट में। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आते हैं, नेटफ्लिक्स, Amazon एंड Yeah, definitely. other Yeah, mediums that's आते हैं। good. Yeah. Have you seen any series or movie recently? I watched Jojo Rabbit yesterday. And oh my Oh, God, it lovely was movie. amazing, amazing. मतलब for the longest time मैं wait कर रही थी कि कुछ इतना amazing आए जो मतलब there are some kind of movies जिनमें portrayal इतना अच्छा और इतना सच्चा होता है that it takes you in another world. It's almost like you're intoxicated without any substance. So I felt like that. Jojo Rabbit देख के at the end I was just grinning. It was amazing. आई कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल, हमारी कुछ कुछ मूवीज में और कुछ सीरीज में इतनी इतनी एनग्रॉसिंग होती हैं कि हम लोग को पता ही नहीं लगता कि हम इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में चले गए। Yeah, definitely. बिल्कुल। तो कोई हिंदी मूवी या हिंदी सीरीज भी देखी उसके अलावा? Actually मैंने वो देखी चिंटू का बर्थडे। हाँ, ओके, नाइस। आई आल्सो रिसेंटली बहुत अच्छी थी वो। Yeah, that was also very good. In fact, अच्छी 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 बनाई। बिल्कुल, उसको देख करके मैं एक्चुअली सोच रही थी दैट हम लोग बहुत लकी हैं। We keep on thinking कि मेरे साथ ये बुरा है वो बुरा है, but we should learn to count our blessings. हम लोग हाँ एक्चुअली अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि हमारे पास जो छोटी छोटी चीजें हैं, हम बिल्कुल उसको अप्रिशिएट नहीं करते। और उसमें यही मूवी में दिखाया कि कैसे छोटी छोटी चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। और बड़े अच्छे से बताया और बड़े अच्छे से बताया और बड़े अच्छे से दिखाया। एक ही सॉन्ग था मूवी में बट बड़ा अच्छा था और डायरेक्शन बहुत अच्छा था। बहुत बहुत अच्छा था डायरेक्शन। हाँ, तो जो भी हमें सुन रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो चिंटू का बर्थडे, इट्स ऑन ZEE5 प्रीमियम, तो आप लोग देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। काफी अच्छी मूवी है। और एक्चुअली हाँ, AIB वालों ने प्रोड्यूस करी है, तो वन कैनॉट इवन इमेजिन AIB पीपल हैव प्रोड्यूस्ड इट। तन्मय भट्ट, गुरसिमरन खंबा and all. यस यस, गुरसिमरन खंबा, तन्मय भट्ट, रोहन जोशी एंड आशीष शाक्या। तो दे हैव डन अ मार्वेलस जॉब। बहुत अच्छा, अमेजिंग। और कास्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया है। जो कास्ट एब्सोल्युटली। एंड आई वंडर इस टाइम पे लोग, आई डोंट नो व्हेन इट वाज शॉट, बट मतलब इतना अच्छा एक्चुअली दे गॉट अरेबिक पीपल who actually speak and act in Arabic, so that was great. That was really nice. Yes. तो हम जैसे बात कर रहे थे पोएट्री की और सिंगिंग की, तो आप हमारे साथ कुछ शेयर कर सकती हैं? What poetry? Yes, anything you like, anything you have written recently or you love it. Yeah, I mean, I do write. I'm not that good at it though. I mean, I'm not a professional. It's Maybe doctory fine. would be professional level, but not my writing definitely. My writing is actually a lot of it is imaginary. So मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि प्लीज ये ना सोचें कि ऐसी दुख भरी घटनाएं मेरे साथ हो रही हैं. It's a lot of it is sad. So it's a lot. Disclaimer is there. Yeah, nice. Yeah. Oh, Shikhar, Jai Savai. Okay, Jai Savai is actually SMS for SMS, Savai Mansingh. Okay, I got so it. all of us say Jai Savai. Jai Savai. So you worked in Savai Mansingh as well. I was in Savai Mansingh. मेरा कॉलेज वही है. मैंने MBBS वहीं से किया, internship वहीं से करी. So nice. I have amazing memories there. Great. Okay, so go ahead. Yes, go ahead.
Yeah. So this is it's actually इसका मैं context बताती हूँ. This is about a woman who's talking to her ex or her future partner, something like that. Um, yeah. So it just a second. Yeah. Okay. So this is so ये लड़की मैं हूँ, but other parts are imaginary. So it's about No problem. Yes. her telling her future lover that what she'd like him to be like. Okay. So she's saying तुम शाम ढले तब मुझे वो नज्म पढ़कर सुनाना हर लफ्ज के मतलब के साथ, और मैं तुम्हारे बगल में लेटकर तुमको ताकूंगी, सोचूंगी तुम्हारी आवाज कैसी है, नज़में नहीं जचती इस पे, और तुम कितने प्यारे लगते हो, कैसे तुम्हारी आंखें हर लफ्ज के साथ चेहरे बदलती हैं, तुम्हें देखते हुए बस मैं सो जाऊंगी और सोती ही रह जाऊं तो भी कोई गम ना रहेगा. एंड इसका टाइटल मैंने दिया था जब शाम ढले आना. सो आई काइंड ऑफ रियली thought that it's a very romantic thing to do, to read out to the person you love. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, और आई होप कि one day you will get someone like that. Yeah, I hope so too. और आजकल तो मौसम भी इतना अच्छा हो रखा है जयपुर में, जब से लॉकडाउन हो रखा है तब से मौसम इतना अच्छा हो रखा है कि मौसम एक्चुअली हमें टीज कर रहा है कि पर क्या करें, जैसे सरकार ने कह रखा है कि हमें बाहर नहीं निकलना है, और जब भी जरूरी हो तभी जाना चाहिए हमें बाहर. बिल्कुल बिल्कुल. सो दिस इज अ पब्लिक सर्विस और व्हाट अनाउंसमेंट कि आप लोग घरों के बाहर ना निकलें, और जब भी बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें. हाँ, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ एक डॉक्टर है जो बिल्कुल क्वालिफाइड इनफ है, जो ये सब बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. Yeah, I mean, yeah, there's a responsibility. I understand that comes with my line of work. Yes, बिल्कुल, वो तो है. What do you think about the current situation which is there, and the thing which happened with the migrant workers and all? Actually, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग एवरी वन ऑफ अस, एक्चुअली एटलीस्ट मोस्ट ऑफ अस, एंड जो जिन लोगों से आप या मैं बात करते हैं, हम लोग एक बहुत ही छोटा पार्ट है पॉपुलेशन का, जो शायद प्रोबेबली सबसे प्रिविलेज्ड भी हैं, बिकॉज हम लोग एजुकेटेड हैं, हमारे पास घर है, वी हैव गुड फैमिलीज, एंड वी हैव एक्सपोजर टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. बट हम सभी जहाँ चाहते हैं कि हम अनबायस्ड इंफॉर्मेशन पाएं और उसे पढ़कर उसे देखकर अपने व्यूज बनाएं, मैं स्टिल कहना चाहूंगी कि हम सब का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो अलग अलग है. बिकॉज अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, और भी अलग तरह का प्रिंट मीडिया है, टीवी है, टन्स ऑफ न्यूज चैनल्स. सो हम जिस चीज के बेसिस पर अपने व्यूज बनाते हैं जो कि हमारे लिए अनबायस्ड है, दैट माइट स्टिल नॉट बी द राइटेस्ट और द ट्रूएस्ट थिंग. Yes, क्योंकि हम लोग एक साइड ऑफ द स्टोरी देखते हैं, दूसरी साइड आपको पता नहीं होती है कि क्या चल रही है. मे बी इवन आई डोंट नो हाउ मेनी साइड्स टू अ स्टोरी देयर आर एनीवे, बट या डेफिनेटली हम लोग, because the cases we deal in, so we know it very well कि in each and every case there are so many other circumstances to the case, and आपको एक चीज के बारे में पता होता है पर आपको दूसरी चीज के बारे में पता नहीं, तो जब तक आपको दोनों चीज पता नहीं होती, सेम चीज का भी इंटरप्रिटेशन सबका अलग होता है. सो आई डोंट थिंक आई एम इन अ प्लेस कि मैं कमेंट कर पाऊं चीजों पर कि अभी जो सिचुएशन चल रही है वो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है. I just want point from your side, that's it. No comment. We are not here to judge anything. We are not the decision makers. Yes. I don't know, पता है, I don't think that मैं सोच भी सकती हूँ कि जो हुआ ठीक हुआ या गलत हुआ, because सही या गलत ये एक्चुअली काफी टाइम बाद इन द फ्यूचर जाके रियलाइज हो पाता है हमको, when we see the consequences of the actions. So I think government is trying to do what they can, and definitely बहुत सारी shortcomings हैं, definitely
जो मिडिल मैन है वो बहुत रिसोर्सेज खुद आई थिंक करप्शन के थ्रू देर taking Right. away a lot of what belongs to the poor people, which should go to the poor people. जी. But I still don't know कि कौन कितना कर रहा है. मेरी नजरों के सामने जितना मैं देखती हूँ, like I have a lot of government servants in my family, so they have not stopped working. पूरे लॉकडाउन में वो फिर भी वर्क कर रहे थे. They were doing a lot. So I don't know. I really don't know. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. और अनिल, वैसे भी अभी जैसे जो इंसिडेंट हुआ केरला में भी, तो काफी लोगों का पॉइंट था कि वो जो एलिफेंट के साथ हुआ और उसने जो खा लिया और उसके कारण जो उसको रिएक्ट कर गया, तो काफी लोगों का ये कहना था कि ऐसा जो हुआ ये सही नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए. Yeah, definitely. वी कम्प्लीटली एग्री विद दैट. बट क्या करें कि वो लोग जंगल में रहते हैं और ना उनको भी अपने को बचाना होता है. तो उस केस में उनने सिर्फ कुछ प्रोटेक्शन के लिए वो सब चीजें रख रखी थी और वो नहीं, वहाँ पे आई डोंट बनाते हैं सब थिंक चीजें. देयर इज नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस चीज के लिए तो आई डोंट थिंक कि कोई भी तरह का जस्टिफिकेशन इस चीज के लिए हम नो दे सकते हैं. द थिंग इज कि इंटेंशन था या नहीं था. सो इन दिस केस अभी जो रिपोर्ट आई है, so according to that report, intention was not there to kill elephant, right? तो इंटेंशन ये था. हाँ, सो गलती से एलिफेंट ने खा लिया और उसके खाने से फिर वो वैसा रिएक्ट हुआ. तो ये चीज थी वहाँ पे. तो वही है. आई डोंट नो अबाउट दिस. आई डोंट नो रिपोर्ट्स कितनी फैब्रिकेटेड हो सकती है. एक्चुअली सी, मेरे को जितना दिख रहा है उतना, अकॉर्डिंग टू दैट, आई डेफिनेटली फील दैट विक्टिम वाज द एलिफेंट एंड काफी और चीजें करी जा सकती थी उनको शायद भगाने के लिए रेजिडेंशियल एरिया से. सो आई डोंट नो. एंड इनफैक्ट उसके बाद भी देखा गया दैट देयर वाज न्यूज में ये भी था कि जो हथनी को खिलाया था, वट एवर डिसफंक्शन शी फेल्ट इनसाइड हर सिस्टम, वो भाग करके उसने रेजिडेंशियल एरिया में कुछ नुकसान नहीं करा. शी अवॉइडेड ऑल ऑफ दैट एंड वो वाटर बॉडी में गई. वो तो बिल्कुल मैंने देख लिया था. वो तो बड़ी सही चीज है कि उनने हार्म नहीं करा. बिल्कुल. So I don't know. I think reports can be fabricated and probably ये मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे जिन्होंने उस हथनी के साथ ऐसा करा. बिल्कुल, हाँ, वो तो हो सकता है. बिल्कुल एवरीथिंग इज पॉसिबल. नहीं, हमारे तो बस ये कहना है कि आजकल जो मीडिया में इतनी सारी चीज चलती रहती हैं, तो मीडिया में सब चीज सही नहीं होती है और सब चीज को हमें इतना देख के सोच समझ के फॉरवर्ड करना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन व्हाट्सएप और ऑन इंस्टाग्राम. डेफिनेटली. मैं तो आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो पूरी नहीं है. सो आई शुड जस्ट स्टॉप. सो मैं यूजुअली नहीं करती. हाँ, ये बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात बोली कि है ना, लोग आजकल है ना बिना सोचे समझे और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और उनको पता नहीं कि उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं और कहाँ तक वो न्यूज पहुंच सकती है. डेफिनेटली. बिल्कुल. तो चलिए अब हम आपसे कुछ सुनते हैं, कुछ बढ़िया जो आप सुनते हैं मतलब चाहेंगे. आप गाती भी इतना अच्छा है, लिखती तो है ही अच्छा. अच्छा, ओके. So any of your favorite song, whatever you feel like. I don't know. एक तो इससे आवाज कैसी आएगी, मेरे ईयरफोन्स का माइक कैसा है. So just tell me if it's no one is there to judge you. No one is there to judge you. You can just no, but maybe I can sound better without this mic. So just tell me if the voice is crooked or something. ठीक है? Okay, I'll let you know. Yes. Okay, so this is actually for the longest time I did not have an answer to the question कि मेरा most favorite song कौन सा है. But I think it's this मेरा one. अभी भी नहीं है. मेरा अभी भी नहीं है. कोई फेवरेट सॉन्ग है नहीं, क्योंकि हम इतने सारे सॉन्ग सुनते हैं और अच्छे होते हैं सॉन्ग, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो. तो मेरा अभी भी कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है. मैं बहुत सारे अच्छे गाने हैं वो. Yeah, but I don't know. Maybe this one is mine because I don't know. जब भी मुझसे गाने के लिए बोला जाता है, I just sing this one. So I realize maybe this is mine. So it's from the movie Highway and it's ये लोरी है actually. It's a हरियाणवी लोरी. इसका मतलब मैंने पढ़ा था. It's a grandmother telling her grandson कि you're my little rabbit. That's what it means. Okay.
मैं नानी सुहासा ले जाना कोई के मीठी मीठी खेती में खेला न हो। तोता बोले पेड़ पे पेड़ से पूड़ी से सुहासा नींदन में ओ खाना हो। संगी साथी हंसुने थारे होना हो। सुहासा अम्मा का सुहासा अम्मा का टूटा तारा सा छोटा सा तारा सा टूटा रे पूछे वो देखो तेरे ही बारे में। क्यों ना सोए क्यों तू रोए क्यों तू खोए यूं परदेस में हो। क्यों तू रूठा किससे रूठा क्या है छूटा तेरा देश में हो। जो भी है रूखा सूखा मन में वो बोलो तो खोलो राहें बातों की बाहें हो। I think that will be it. बहुत ही अच्छा है। नहीं, बिल्कुल क्लियर आ रहा था और बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे रहा था और इतना अच्छा लिखा हुआ है कि हमें सुनने में मजा आया और आपने गाया तो बहुत ही Thank you. Thank you. You should also sing something. अच्छा अच्छा okay, so you're in request as well. Okay, nice. Okay, so मैंने अभी रिसेंटली एक गाना सुना था तो मेरे को काफी अच्छा लगा वो और उसके लिरिक्स भी काफी अच्छे लगे मेरे को। Okay. तो मैंने अपलोड भी कर रखा है तो मैं अभी 2 लाइन यहाँ सुना देता हूँ। I think मैंने सुना होगा फिर। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल आई गेस एल्बम का है। मेरे को ये नहीं पता कि मूवी का है या नहीं। तो मांझा 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 सॉन्ग का नाम है। राइट, विशाल मिश्रा। राइट, विशाल मिश्रा ने गाया है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने रिसेंटली सुना, मैंने पहले सुना था बट मैं मिस कर रहा था उस टाइम पे। तो है मांझा तेरा जाके कि तेरी पतंग को काटे है कि है मांझा तेरा जाके तेरी पतंग को काटे है। ओ मेरी जान चली तूने मुड़ के जो देखा। मेरी जान चली तूने जो मुड़ के देखा। है मांझा तेरा जाके तेरी पतंग को काटे है। एक्चुअली मैं थोड़े लिरिक्स भूल गया हूँ, सो मैं दूसरा एक और सुनाता हूँ क्योंकि ये मांझा मैंने अभी रिसेंटली सुना था तो मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है। तो मैं कोई दूसरे सॉन्ग की सुनाता हूँ जो मेरे को काफी अच्छा लगता है और पुराना सॉन्ग है। तो आई होप सबको अच्छा लगे और आज की सिचुएशन पे भी थोड़ा सा बैठता है। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना। राइट। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो हम थे यहीं हम थे जहाँ अपने यहीं दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। Thank you. Nice. This is one of the evergreen songs, right? Yes, जोकर का है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल जोकर का गाना है। काफी पॉपुलर सॉन्ग है। Lovely movie and lovely song, yeah. Yes. You sang it really. बिल्कुल मेरे को अभी मैंने थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हम इसी पॉइंट पे एक और चीज पे आते हैं जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो आई होप यू मस्ट हैव सीन इट। सो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक।
So what's your take on that? And the remixes that are happening of the old songs. Yes. Both the I things. don't know. I would not be. I would start with the remixes. मुझे remixes से as such कोई दिक्कत कभी हुई नहीं. But maybe a lot of them मुझे पसंद नहीं आते. But I don't know, नया जो म्यूजिक आजकल चल रहा है जो लोगों को पसंद आता है उस म्यूजिक के साथ में सॉन्ग्स को मॉडिफाई करना maybe just helps more people. So good for them. And in fact 90s में and 2001 से 10 में there were a lot of remixes which were बिल्कुल. very peppy. And I do हाँ. remember हम स्कूल में थे तो cassettes आती थी तब. So हाँ, उस time पे I cassettes remember आती थी, one of cassettes them का- was the most famous one of those was Baby Doll remixes. So those हाँ. were, the songs were really peppy. And yeah, the dances were good as well. नहीं 90s Yeah. की अपनी कुछ बात थी और उस टाइम के गाने भी काफी पॉपुलर थे. जैसे कि मैं बताऊंगा एक तो अभी जो इसका रीमिक्स भी हुआ है नए सॉन्ग का ओले ओले का. तो ओले ओले अपने right. टाइम पे काफी पॉपुलर था उस टाइम पे. 90s हाँ, was a और- mood, अलग मूड था वो 2000 के बाद में ऐसा कुछ नहीं होता वो सब अब. So I think हाँ, those were हाँ. the 10 years जिसमें ऐसा बना और फिर खत्म हो गया. हाँ नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आते हैं अच्छे गाने भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे गाने बिल्कुल आते हैं. बट काफी सारे पुराने सॉन्ग्स के रीमिक्सेस भी आए जा रहे हैं. You also must be knowing. So, as you नए also नए know. गाने बनते हैं आजकल एक्चुअली. No one wants हाँ, to नए- spend on lyricists, I think. बिल्कुल बिल्कुल अच्छे नहीं लिरिसिस्ट तो हैं पर मेरे ख्याल से उनको अच्छा पे नहीं कर रहे हैं ये लोग. इसीलिए ना they don't want to. मतलब मैं काफी टाइम से बस 2-3 लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत हमसे काफी लेजेंड्स हैं. जैसे हाँ. जावेद अख्तर जी और गुलजार जी जो कि मतलब बहुत ही बेहतरीन लिखते हैं. उनको हम मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी से भी और दे आर लेजेंड्स. तो उनका तो हमें पता ही है. Definitely. नए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बट नए सॉन्ग जैसा भी मसकली आया फॉर एग्जाम्पल. तो मसकली Yeah. पुराना वाला हाँ तो मसकली पुराना वाला इतना अच्छा था. मुझे हंसी आती है एक्चुअली सुनकर. नया वाला मजाक के लिए was just Horrible. stupid, really Yes, bad. yes. हाँ so इससे Yeah, इससे and, related एक और इंसिडेंट हुआ था. तो आजकल ये लोग जैसे विशाल ददलानी है तो उसने पुराना सॉन्ग गाया था 10 बहाने गाया था उसने पुराना वाला Oh वर्जन, God. द पॉपुलर वन. यस फ्रॉम द मूवी. Yeah, हाँ yeah, that और was great. बिल्कुल. और अभी जो नया वाला वर्जन आया बागी 3 में आया था आएगा तो 10 बहाने Okay. 2.0. मैंने एक्चुअली वो सुना भी नहीं. मतलब ऐसे देख के मन खराब हो जाता है. लाइक नो प्लीज डोंट. लाइक बचपन खराब कर रहे हैं गाने खराब करके. बहुत बुरा लगता है मुझे सही सीरियसली. में नहीं मतलब आजकल मैं वही देख रहा हूँ. नहीं ये वाला पॉइंट मेरे को काफी मेजर भी लगता है क्योंकि हम लोग जो सुनते हैं जो इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, हम लोग गाते भी हैं कुछ और जो लिखते भी हैं अच्छा. तो ये सब पे देख के अच्छा नहीं लगता है कि ये ना इतने अच्छे अच्छे पॉपुलर नंबर्स को ये लोग फिर ऐसे कर रहे हैं, कुछ नया नहीं गा रहे हैं. सेम गोज विद द मूवीज. ये लोग कॉपी काफी कर रहे हैं और कुछ नया कंटेंट नहीं ला आई रहे. डोंट नो. अनादर एक बहुत अच्छी चीज मुझे आजकल लग रही है. इंडियन सिनेमा बहुत प्रोग्रेसिव होने लग गया है एंड वो काफी रियल स्टफ दिखा रहे हैं आजकल. आई रियली वुड लाइक टू कमेंट. बिल्कुल. तो That's आजकल really उनको great नया क्योंकि हाँ नया प्लेटफॉर्म मिल चुका है ना. ओटीटी प्लेटफॉर्म इज देयर नाउ. yeah, but even the movies, mainstream movies भी बहुत बेटर हो गए हैं. इम्प्रैक्टिकल चीजें कम दिखा रहे हैं आजकल, पहले से तो काफी कम दिखा रहे हैं. आई रियली लाइक दैट क्योंकि यंग पॉपुलेशन पे बहुत इम्पैक्ट होता है इस मीडिया का. बिकॉज यू कंसिडर देम योर आइडल्स एंड देन यू इमिटेट दोज पीपल. इट्स जस्ट नॉट ओके. वो जो स्पेशली ईव टीजिंग एंड लड़की के पीछे भागना एंड ऑल दैट वाज वेरी प्रेवलेंट. अभी तक भी काफी हो जाता है बट लोग But item numbers are still there in the movie. yeah they still are there. I don't know. That's one thing. I don't know. The audience wants, I guess. The audience is like Definitely, audience definitely wants it. that. बिल्कुल. I don't know. Objectification कहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए या किस पॉइंट पे आके बंद कर देना चाहिए, मैं इस पे अपना व्यू नहीं बना पाई अब तक. बट डेफिनेटली कुछ चीजें बहुत क्लियरली क्रिंज होती हैं जो कि वो दैट्स वेरी एविडेंट समटाइम्स. बाकी आई रियली हैवंट बीन एबल टू डिसाइड अब तक तो. Okay. बिकॉज यू नो ओल्डन टाइम्स में जब
the dancers, उनका I think they were paid well, and it was just a form of art for a very long time and a form of entertainment. Uh, it was nothing more than that. तब तक I've read a few things about that कि तब तक it was all okay until people started maybe linking it to prostitution or stuff like that. So I don't know अभी कहाँ जा रहा है. these things are legal in the other countries as well. I guess abroad में legal है, काफी जगह legal. You mean prostitution? Yes. Yeah, it is legal at some places, yes. Hmm. And it's I think it's better to legalize it than क्योंकि it's a whole part of a population जो बहुत underprivileged हैं और जिनको कोई rights नहीं है. हाँ, वो अभी जाकर because of के this- पुलिस हाँ, कंप्लेंट्स because भी of नहीं this- कर पाते हैं. बिल्कुल. So because of this lockdown situation, so many people are losing their jobs and बहुत लोग काम नहीं है उनके पास में. जैसे अभी हम लोग फिल्म इंडस्ट्री की भी बात कर रहे थे, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी जो क्रू होता है, बेसिकली क्रू जो कास्ट तो ठीक है, जो क्रू जो बनाता है एक्चुअली मूवी, Definitely they're out of jobs. हाँ, so they're all out of jobs and they don't have money to pay and they are just surviving on their savings and it's very difficult. अभी 2-3 केसेस आए थे जिनने सुसाइड कर लिया था और जिनका पैसा नहीं है, तो वो दे आर डिमांडिंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट. ऐसी सिचुएशन में एक्चुअली गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है. हम लोग अपने लेवल पे आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग विच इज ग्रेट, बट पूरी जनता को रीच करना ऐसे पॉसिबल नहीं होता जब तक गवर्नमेंट हाथ ना बटाए. एंड आई डोंट रियली नो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट. नहीं, इट्स ओके, नेवर माइंड. सो आपने कुछ लॉकडाउन में कुछ नया सीखा, कुछ नया ट्राई करा? हाँ, मैंने आई स्टार्टेड टेकिंग यूकेलेली लेसन्स. सो पर अभी शुरू ही किया है. मुझे स्ट्रमिंग में बहुत दिक्कत होती है. आई एम नॉट टू गुड एट इट. सो ओके, सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली? ukulele is you could think of it like a smaller version of a guitar. Oh, okay, got it. Yeah. I didn't So know the it's- name. Yes. Yeah. That's right. So it's actually a very, very portable thing. So I really like to sit at places and start singing. The one Shahrukh was playing in that DDLJ Really? movie. I don't know. दिखता वैसा ही है, पर ऐसे हाँ, काफी छोटा सारे सा इंस्ट्रूमेंट्स guitar होते हैं. छोटा सा गिटार जैसा. Correct. Got it. अच्छा. Nice, very nice. Lovely. So I started classes. So let's see in the near future. I'm hoping कि मैं बजा पाऊँ उसको गाने के साथ साथ. नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है. म्यूजिक में तो देयर इज नो एंड. आप कितने भी इंस्ट्रूमेंट सीखिए और आप बजाइए, और आई होप कि आप अच्छा ही बजाएंगे. Hope so. बिल्कुल. So and how's everything at your end? Everything is good. Really good. घर पे सब आपके ठीक हैं? हाँ, घर पे सब ठीक है. But since my family, some people are still working and उन लोग के लिए लॉकडाउन नहीं था, so we are maintaining a lot of precautions ताकि घर पे सब safe रहें. Since I also have my granddad here, जो कि काफी old है. Okay. हाँ, So yeah. बिल्कुल उनकी. So if सही बात I है. start उनकी working तो- ऐसे टाइम पे मुझे भी काफी ध्यान रखना होगा, because I'll be working with COVID patients then. So let's see. Yes. बिल्कुल, हमें न्यूज में तो दिखाते रहते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद द कोविड पेशेंट्स, बट स्टिल It's very difficult because government hospitals में, because especially महाराष्ट्र की situation पे काफी स्टोरीज बन रही हैं अभी, एंड आई एम इन टच विद अ फ्यू डॉक्टर्स जो एक्चुअली कोविड वार्ड्स में वहाँ पे पोस्टेड हैं महाराष्ट्र के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. एंड सिचुएशन सच में बहुत खराब है बिकॉज मतलब इमेजिन इतना अंडरस्टाफ्ड है कोविड वार्ड्स कि दो रेजिडेंट डॉक्टर्स पूरा वार्ड संभाल रहे हैं. एंड इट्स रियली नॉट पॉसिबल बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं एंड आपको पहले से लेके आखिरी काम, मतलब उनका स्वॉब लेने से लेकर उनके सारे दिन भर के राउंड्स, उनका चेकअप दिन ट्वाइस डेली एंड मेंटेनिंग देम, क्योंकि अ लॉट ऑफ देम डाई रियली. मतलब आई डू रिमेम्बर वन ऑफ माई फ्रेंड्स टेलिंग मी कि स्वॉब लिया, 4 नए पेशेंट्स थे,
शी टुक द स्वैब, उसको बस छोड़ने गई वो प्रोसेस होने के लिए, देने के लिए, एंड बाय द टाइम शी केम बैक इट वाज 30 मिनट्स हुए थे एंड 4 ऑफ देम डाइड. एंड मतलब इट्स रियली डिप्रेसिंग कि आपके दिन में इतने पेशेंट्स दे डाइंग, एंड टू सी डेथ फ्रॉम सो क्लोज एंड सो मेनी पीपल डाइंग, it's very depressing, very depressing. It's So, very tragic. I mean, It's very tragic. And yeah. इंडिया में तो फिर भी अभी उस हद तक डेथ्स नहीं हुई हैं as compared to other countries. नहीं, इंडिया में डेथ्स हो रही हैं काफी. इनफैक्ट इट्स obviously in every country it's under reported. And Yes, it is underreported. मैं तो literally I would like to take this moment to really thank all of the doctors who are working right now, क्योंकि बहुत Same बुरा here, हाल same है. here. It's really क्योंकि bad. हम लोग, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वो लोग लगे हुए हैं, मतलब कितने वीक से, कितने महीनों से, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. तो सल्यूट है उनको, तो सल्यूट. And definitely all the other essential services, army, police, Yes, yes, ये लोग, absolutely. they have not taken a break इतने टाइम में, so that's commendable. तो मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा था कि आजकल वो चल रहा है बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स. तो Yeah. Yeah. तो उस पे क्या कहना है? Actually, first of all, मेरी इकोनॉमिक्स में इतनी नॉलेज नहीं है, तो नहीं, but, मतलब मैं वो स्टैटिस्टिक्स पे बात नहीं करूंगा. मैं ऐसे ही जनरल बात कर रहा हूँ कि व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, कि हमें एक्चुअली आई थिंक कि सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट्स बंद करने से चाइना को ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला है. बट ऑब्वियसली सबका अपना व्यू होता है. अगर लोग दिल से चाइनीज प्रोडक्ट्स बंद करना चाहते हैं एंड इट उनको उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो डू इट. रियली देयर इज नो हार्म, बट डेफिनेटली चाइना को इससे ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा. आप अगर उनके प्रोडक्ट्स ऐसे यूज करना बंद कर देंगे, उनका मार्केट बहुत बड़ा है. क्योंकि अभी जो एनवायरमेंटलिस्ट भी है, और फुनसुक वांगडू जो अपन ने वो मूवी थी 3 इडियट्स में, तो उसके कैरेक्टर के बेस पे एक लद्दाख में रहते हैं मेरे ख्याल से, वो वैंगचू, मिस्टर वैंगचू. तो उनने ही मूवमेंट स्टार्ट करा है बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का. हाँ, सो काफी पॉपुलर है. सो यू आल्सो यू डू वॉच द वीडियो, इट्स देयर ऑन यूट्यूब, सो यू गेट टू नो. ओके, यस. आई डोंट नो यार, इससे काफी ज्यादा मेहनत चलिए. सो आई एम होपिंग. या The video was stuck, so that's why. अच्छा, ओके. नहीं, हाँ, बस आई डोंट रियली नो, बट या चाइना की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है. दैट इज वन थिंग दैट आई नो थ्रू टेक्स्ट. उससे ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, बट मे बी, आई मीन, सब अपनी तरफ से जो करना चाहते हैं, दे शुड डेफिनेटली डू इट. नहीं, बिल्कुल. अच्छा, मैं 2 चीज पूछने वाला था जो मैं पूछ नहीं पाया हूँ. जैसे कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो पूरा स्टाफ लगता है उसमें, या ओनली सिलेक्टेड स्टाफ इज देयर फॉर द कोविड पेशेंट्स? देयर इज अ सिलेक्टेड स्टाफ. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो लोग शिफ्ट्स कर रहे हैं. सारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन लोगों की शिफ्ट्स होती हैं. सो इट्स नॉट जस्ट वन डिपार्टमेंट. सारे डिपार्टमेंट्स में से वो लोग जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स की टीम को शिफ्ट्स दी जाती है. सो इट्स नॉट लाइक एक डॉक्टर महीने भर वहां पे काम कर रहा है. सो देयर आर शिफ्ट्स, एंड वैसे एक्चुअली हर हॉस्पिटल ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है इसको लेकर, तो जनरलाइज तो हम नहीं कर सकते. बट या, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक to take this opportunity to say that जो लोग एक्चुअली डर रहे हैं कि डॉक्टर अगर वापस अपनी बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में आ रहा है तो उनको इन्फेक्शन फैलाएगा, आई डोंट थिंक वो डरने की भी बात है. ऑब्वियसली बाहर किसी को बिल्डिंग के बाहर निकाल देना तो बहुत इनह्यूमन है ही, स्पेशली दोज पीपल हु आर रियली द बैकबोन ड्यूरिंग दिस टाइम. बट वो इमोशनल चीजें साइड रखकर मैं लॉजिकली भी बात करूं तो बाहर निकाल, आपको इतना डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो डॉक्टर कोविड वार्ड में काम करता है वो पूरा पीपीई पहन करके काम करता है, और वो 6 आवर्स का जो ड्यूरेशन होता है, जैसे काफी, आई डोंट नो बाकी हॉस्पिटल्स कैसा कर रहे हैं, बट एक बेसिक सिस्टम ऐसा बना है कि 6 घंटे आप अंदर रहेंगे. उस दौरान आप पानी नहीं पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे, आप वॉशरूम नहीं जाएंगे. तो उनका उस वार्ड के बाहर निकलने का कोई भी संभावना नहीं रहती उस वक्त. एंड बिफोर कमिंग आउट वो अपना पूरा अपैरल हटाते हैं एंड देन दे कम आउट. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस उस वक्त ट्रांसमिशन का.
बाकी आई डेफिनेटली कैन से दैट ओपीडी सेटिंग्स में या बाकी वार्ड्स में जहां पर यू डोंट नो कि आपका पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, डेफिनेटली तब ट्रांसमिशन हो सकता है. अच्छा, नहीं मैं जैसे आपने बताया कि वो लोग कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, दे हैव टू बी वेयरिंग दैट. या दैट्स वेरी डिफिकल्ट. तो हम लोग तो कुछ टाइम के लिए मास्क पहनते हैं, उसमें हमें सफोकेशन हो जाता है. इट्स उसमें हमें रियली बैड. suffocation हो जाता है. प्लास्टिक के इतने लेयर्स होते हैं आपके ऊपर एंड उसके ऊपर मोस्ट ऑफ अस एक्चुअली हैव स्पेक्स. तो हम चश्मा लगाते हैं, चश्मे के आगे हम एक शील्ड लगाते हैं, तो विजिबिलिटी तो काफी कम वैसे ही हो जाती है. सो इट टेक्स a few I guess around 30 minutes to actually get acclimatized to that reduced visibility also. एंड उसके बाद जो गर्मी लगती है वो तो टोटली अलग इशू है एंड इट्स सफोकेटिंग एज हेल. इट्स वेरी सफोकेटिंग. हम तो बस सोच रहे हैं, मतलब मैं तो बस सोच रहा हूँ कि कैसा लगता होगा, तब मेरे को टेरिफाइंग लग रहा है. और वो लोग तो कर एक्चुअली दिस इज अनदर थिंग दैट आई थिंक इस वक्त डॉक्टर्स में भी डिप्रेशन के रेट्स डेफिनेटली स्काई रॉकेट होने वाले हैं, बिकॉज पीपल डोंट रियली गेट कि उन पे इस वक्त उनकी क्या सिचुएशन है एंड यू कांट ऑब्वियसली काम तो उनको करना ही एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग इट. नो वन इज गोइंग अवे अप फ्रॉम देयर ड्यूटीज, बट या डॉक्टर्स आई थिंक दे शुड बी सपोर्टेड इस टाइम पे. बहुत ज्यादा सपोर्ट देना चाहिए. मैंने देखा है कुछ एक्ट्रेसेस थी जो बॉलीवुड में चली गई थी, बट मतलब दे वर डॉक्टर्स एज वेल, मतलब प्रॉपर डॉक्टर्स, दे हैव डन एमबीबीएस एंड ऑल, और अभी इस टाइम पे वो वॉलंटियर करने भी आ गई. तो दैट्स समथिंग एंड दैट्स अमेजिंग कि मतलब उनने अभी अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ के और वो अभी हेल्प करने आ गई. तो बड़ा अच्छा लगता है देख के. हाँ, बड़ा अच्छा लगता है देख के और बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि ये सब चीजें भी हो रही हैं. और सरकार तो कर ही रही है, सरकार तो जहाँ तक नहीं सरकार कुछ नहीं कर रही है डॉक्टर्स के लिए. डेफिनेटली सरकार कुछ नहीं कर रही है. नहीं, I'm not saying about the doctors, I'm not saying about the doctors, for the public, for the public citizens कुछ तो कर ही रही है एटलीस्ट. मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार जितना होता है 100% कर रही है, बट सरकार I'm actually very happy that India is doing better than a lot of other places and obviously किसी भी सरकार को अभी ये नहीं पता है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि किसी ने शायद पहले इतनी बड़ी आपदा का सामना नहीं किया है. बट इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत करप्शन भी है एंड बहुत रिसोर्सेज जो शायद पुअर को मिलने चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं एंड ब्यूरोक्रेसी एंड एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ अलग अलग लेवल्स पे लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं. एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री विद यू. सो आप जब बाहर से आ रही थी फॉरेन से, सो वहां पे क्या डिफरेंस है और यहाँ पे क्या डिफरेंस है आपको दोनों एस्पेक्ट? डिफरेंस किस चीज में? कोविड के सिचुएशन में और वैसे वो कैसे डील कर रहे हैं वहां, हाउ दे आर डीलिंग एवरी. एक्चुअली मैं तो काफी खुश हूँ इंडिया में जिस तरह से डील हो रहा था अब तक उससे. इनफैक्ट रिस्पेक्ट, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पुलिस ऑफिसर्स आल्सो कि वो लोग एक्चुअली लोगों को अंदर कर रहे थे वापस, जो बाहर निकल रहे थे लोग उस वक्त घर से जब लॉकडाउन था. एंड बाहर मैं आई डोंट नो बाकी जगहों पर क्या हो रहा है क्योंकि मैंने देखा नहीं है. I've only seen through photos or some selected videos. But yeah, मैं जहाँ पर थी, yeah, I wasn't very happy with the way people were dealing उधर, क्योंकि I don't know, education literacy level काफी ज्यादा है वहाँ पर as compared to most of the places in India. But उसके बावजूद मैं देख रही थी that people were not taking lockdown seriously and a lot of them were actually outside. It was almost a vacation because summer months शुरू हो गए थे and summer काफी छोटी होती है वहाँ पर and everyone was at home, so they were out cycling and going to each other's places for meals and all of that. I was personally very dissatisfied कि इतनी पढ़ाई के बाद में they are behaving like that. And police was not instructed to ask people to go inside. So मैं इंडिया से I was very happy the way people were behaving यहाँ पर. Obviously जगह जगह पे कुछ ना कुछ होता रहता है, मैं ये नहीं बोलती, गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं. But yeah, India is doing good, I think, and better than a lot of places that are first world countries. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, और दूसरे पॉइंट पे आ रहा था कि आप अगर you must have heard about the George Floyd situation that happened.
हम्म सो आपका क्या कहना है उस पर? कहना तो यही है दैट गलत तो है इसमें, तो कोई ब्लैक एंड, ये दिस इज जस्ट ब्लैक एंड वाइट, गलत गलत ही होता है। बट आई रियली थिंक दैट प्रोटेस्ट्स के दौरान एवरीवनस गेटिंग केयरलेस कोविड के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज आई जस्ट रेड कि न्यूयॉर्क में उन्होंने आई थिंक आई डोंट नो मोर देन 10 शायद स्टेशंस ऑल ओवर न्यूयॉर्क सिर्फ इसलिए ओपन कर रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट में जो लोग थे उनको कोविड के लिए टेस्ट कर पाए। सो ऑब्वियसली ये मेडिकल मशीनरी पे बहुत बहुत बड़ा भार होने वाला है इन प्रोटेस्ट्स के कारण। आई डोंट से दैट प्रोटेस्ट गलत है, डेफिनेटली देयर इज अ नीड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इस टाइम पर शायद प्रोटेस्ट्स आरंट द बेस्ट आइडिया। नहीं, सरकार को भी समझना चाहिए, और सरकार को अगर सरकार को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पब्लिक को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो वहाँ की सरकार के बारे में तो कुछ बोलना ही इट्स काइंड ऑफ यूजलेस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम ये टॉपिक खत्म करते हैं यहीं, और हम मेरे ख्याल से हमें बात करते हुए काफी टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से 1 घंटा हो चुका है। सो आज का हम रियली हाँ, so, पता ही बात करते हुए पता ही लगता है कि हम इतनी सारी चीजों पे बात करते, इतनी सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे, और हमारे साथ इतने लोग जोड़ रहे हैं जिनकी हमने उनके क्वेश्चंस भी आए बीच में, तो मैंने मिस कर दिए, और काफी लोगों की रिक्वेस्ट भी थी, सो हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग इतने बात करने में मशरूफ थे कि हाँ। मुझे आई डिडंट सी एनी क्वेश्चंस। अच्छा, तो ये हो सकता है मे बी कि ना, आई स्टार्टेड द लाइव सेशन, मे बी आई वाज गेटिंग द क्वेश्चन that I'm getting comments definitely, especially ss.rathor05k. Is that Shailendra? Yes. Okay, Shailendra, hi. I can see a lot of his comments actually. हाँ, तो वो अभी जयपुर आया हुआ है, तो इसलिए वो इज फ्री राइट नाउ, तो हमारा सेशन I can see. Yeah. Your friends are also joined. हमारे तो है कॉमन फ्रेंड्स काफी ज्वाइन इन हुए थे स्कूल से, काफी लोगों ने ज्वाइन इन कर, सो आई होप सबको अच्छा लगे हमारा सेशन। हमने काफी सारी चीजों पे बातें करी, और बड़ा अच्छा आप लिखती हैं, इसको ऐसे ही कंटिन्यू करिए, और थैंक यू। आती तो है अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ, सुन के आप भी प्लीज कीप ऑन डूइंग योर इंस्टा लाइव्स. I think it's your, as you said, your little attempt to spread positivity इस time पर. That's actually great. तो जैसा आपने बताया कि डॉक्टर्स को भी आजकल नीड है कि वो पॉजिटिव रहे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के कारण इतना स्ट्रेस वैसे ही बढ़ रहा है, तो बस हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम सबसे बात करें, हम जिनसे भी बात करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन से हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लॉयर। डेफिनेटली इस वक्त स्पेशली एक्चुअली मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जिनको ओसीडीज स्पेशली, या तो दे वो वनरेबल फॉर ओसीडीज, पर शायद कभी दिखा नहीं था, प्रेजेंटेशन नहीं था बेसिकली, वो उन लोगों का ओसीडी कभी एकदम से बढ़ गया है, present हो रहा है actually. They're having a lot of symptoms, and life is really hell for people right now with OCDs, I think, and paranoia and all of that, because बार-बार sanitization, anxiety and everything. Also, anxiety, depression, especially for people who don't have family or friends around, जो अकेले lockdown है. It's really bad. It's very tragic. I can understand. और आजकल हाउस हेल्थ भी नहीं है लोगों के पास, कुछ लोगों के पास हाउस हेल्थ, सो उनको नॉर्मल डेली रूटीन उनका सही नहीं बैठ रहा, लोगों के डेली रूटीन्स थोड़े से ब्रेक हो रखे हैं, और उनको ठीक है, सब अपने अपनी तरीके से डील कर रहे हैं। सो हमारे पास छोटी कोशिश है कि जो भी हमारे साथ जुड़े और हमें सुने तो एंजॉय करो, उनको अच्छा लगे, और बस हमारी ये कोशिश जारी रहेगी, जब तक देखते हैं कब तक जारी रहेगी, बट करते हैं। सो हम ये सेशन आज का खत्म करते हैं आपके एक और सॉन्ग से, या आप कुछ सुनाएं हमें सॉन्ग से? ओके, या मैं कुछ सुनाऊं? लेट मी थिंक। whatever you write, whatever you want to sing, or whatever you want to share. Okay. I don't know if poetry would be too long, I guess. No, not at all. We have time.
Okay, so this is actually something I wrote about depression. बहुत छोटा है, मैंने depression पे काफी चीजें लिखी हैं actually. And this is I think the last one I wrote about. I don't remember. ये December का है. So yeah, it goes as the day closes, it closes on you. The temperature drops. It gets darker, and so does the inside of your throat. Darker, emptier, as the air inside gets thicker, colder, denser. So dense that it starts to set hard, like a solid column inside of your throat. And you cannot breathe, at least not anymore. The air around sounds of silences, and the single creak of a bicycle passing by makes it sound like it would if death had a voice. So this is something I wrote. This is actually the kind of thoughts that come in a mind that's depressed. Yes, I think it's better to express it or to write it. Yeah, definitely. But not everyone can. Yes, बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं और आपने बड़ा अच्छे से बयां कराया चीजों को. सो थैंक यू सो मच श्रुति फॉर ज्वाइनिंग इन. I had fun. I don't know about I you. had fun too. Okay, that's great. So thank you so much for joining in. और हमारे साथ जो भी आज जुड़े, आई होप आप लोग को मजा आया हो. और थैंक यू. आपको कैसा लगा हमारा सेशन, आप बताएं. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. I mean, I've never done something like this before, so मुझे अच्छा लगा. I was nervous शुरू में क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था, but it's good. नहीं, कुछ नहीं, बस हम नॉर्मली बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, और हमारे साथ जो लोग हैं हमें सुन रहे हैं, उनको मजा आ रहा है. वो लोग हमारे साथ जैसे शैलेंद्र काफी एक्टिव है, तो वो और हाँ, तो बड़ा मजा आया. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू वरुण. ओके, बाय बाय. यस, You too. Bye bye.